हे गाइस, माय नेम इज हर्ष। एंड माय नेम इज पूर्वा। और आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं दो स्पीचेस पे। बेसिकली स्पीच है काजल अग्रवाल की और श्रुति हसन की। और इसमें दोनों बताएंगे, हम लोग सबको इन्फॉर्मेशन है कि उनको पवन कल्याण सर के साथ वर्क करके कैसा लगा। सो हमने भी नहीं देखी अभी ढंग से स्पीच क्या है। सो अभी देखते हैं कि हीरोइंस जो थी मूवीज में उनकी क्या व्यूज़ है पवन सर के बारे में। सो बेसिकली जो फर्स्ट स्पीच है ये सरदार गब्बर सिंह के ऑडियो लॉन्च की स्पीच है। बहुत पसंद की मूवी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी पवन सर की, ये सबसे बेस्ट अभी तक की। तो अगर आपको भी इंटरेस्ट हो तो बताना, हम उस मूवी पे भी रिएक्ट करेंगे। सो ये जो पर्टिकुलर स्पीच है फर्स्ट वाली, वो तो मैंने आपको बताया कि सरदार गब्बर सिंह के ऑडियो लॉन्च की स्पीच है। जो सेकेंड वाली स्पीच है वो कार्टून नोडू के सेट की स्पीच है। सो लेट्स सी क्या ओपिनियंस है इन दोनों के। यस, हाँ, उनके बारे में। और हाँ, दीदी अभी बोल रहे थोड़ी देर पहले काजल अग्रवाल ने क्या किया है, काजल ने फूल लगाया। हाँ, ये कर लो पहले। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। Firstly, I'd like to say that it's a complete honor to be sharing the stage with Chiranjeevi sir as well as Pavan sir. चिरंजीवी सर भी आए And हैं there are many ऑडियो people in लॉन्च this में। film that I'd like to thank, starting with my director Bobby. It's been a complete pleasure working with him. My producer Sharad Garu. It's been amazing to be working with him as well. The entire cast and crew, Sanjana, Ali Garu, Mukesh sir, Sharad. It's been amazing working with all of you. And DSP, you have totally killed it once again, DSP as usual. And now the most important part, Power Star. पावर स्टार। ये बैकग्राउंड देखो कितना I now truly understand the meaning Serious of हो this गए हैं वो। title. It's a lot of hard work, a lot of single-minded focus, dedication, passion, and all the inspiration that he has given everyone around him. All his focus into every aspect of filmmaking that makes him the amazing, amazing superstar as well as fabulous person that he is. And it has been such an amazing opportunity working with you. I'd like to say a very big thank you to my entire team and to all of you for being here today with us. Thank you so much. आई थिंक वो शर्मा आ गए ना, मतलब वो पता नहीं क्यों ऐसा बोलते नहीं है ज्यादा कुछ। हाँ। लेकिन बाकी उनकी तारीफ हो रही है बहुत। मतलब उनकी थोड़ी बोलने की कमी आदत है, बिकॉज मैंने ना जितने भी उसमें देखा है अब तो यार राजनीति में तो जब से काफी बोल रहे, लेकिन ना कई बार वो चुप रहते, ज्यादा नहीं बोलते। बट हाँ वही, मतलब मैं बोल रहा हूँ स्टेज पे या ऐसे में ज्यादा नहीं बोलते। मतलब जो कोई मूवी का प्रमोशन होता है तो है ना, पॉलिटिक्स में बोलते बट ऐसे नहीं बोलते। ऐसे नहीं बोलते ज्यादा। सो लेट्स नाउ रिएक्ट टू अनदर वीडियो। अब ये वीडियो है श्रुति हसन की अबाउट पवन कल्याण एंड काटमारा नोडू। ये वीडियो है काटमारा नोडू मूवी, जो हमको बहुत अच्छी लगती है, वन ऑफ माय फेवरेट, उसके सेट से है। तो देखते हैं कि श्रुति हसन की क्या व्यूज है पवन कल्याण सर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। अभी यहाँ पे NTV 20 years of Pawan Kalyan sir being in the industry, certainly a very monumental and memorable occasion. My first experience working with him was on Gabbar Singh. To me, it feels like that was so long ago. Very memorable part of my career. Really, something that turned the tides, you could say. I was going through a phase Turned in the my career tides. where I was quite doubtful about which industry I should focus on more. Was it Tamil, Hindi, Telugu? So many things. So for me, I think, Pavan Kalyan sir will always sort of be like a flag bearer of good fortune in a certain sense, because Gabbar Singh kind of changed everything for me. But more importantly, I think I really enjoyed working with him because since then, up until now, I found him to be a very unique person. Someone who's very interested in things more than just the realm of cinema, things that relate to society and the world and our opinions and our governments and people. So that's something that struck me about him. Even then, he wasn't speaking about much because he doesn't talk very much. But whatever he said, I found him very connected to the earth, first of all, and to people. So that was something I liked very much about him, that he had little to say, but whatever he said was
something very working with him in Katamarai. It's been a wonderful experience in the sense that it's lovely to be working with him again after all these years. I don't feel he's changed much. He's still pretty much true to who he is. I think the events and the surroundings around him have changed. For example, I've changed so much since Gabbar Singh, but he's pretty much the same person. I think he probably still had the same approach then, and it's just more obvious now. So I'm very happy to be working with him, and always wish him the best and 20 more years of success and happiness and a life full of, fulfilled wishes that he has. सो गाइज जैसा कि मैंने आपको बोला था वो कम ही बोलते हैं, तो इनने भी वही बोला कि वो कम ही बोलते हैं. सो अभी श्रुति हसन ने ये बताया कि जब उनने फर्स्ट मूवी सरदार गब्बर सिंह उनके साथ बनाई थी तब से अभी तक भी वो बिल्कुल चेंज नहीं हुए. और दूसरी स्पेशल बात है, जैसे मैं बता रहा हूँ, चेंज हो गई थी कि सरदार गब्बर सिंह के साथ जब से उनके साथ मूवी बनी काफ़ी मतलब उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट ही समझो, बहुत अच्छी सक्सेस हुई थी. और अभी तक भी वो मतलब साथ में उनके लिए काटमारायण नोटू बनी तो वो चेंज नहीं हुआ उनका बिहेवियर, मतलब वो साइलेंट ही रहते हैं ज़्यादातर. हाँ, मैं बता रहा था कि जैसे दूसरे एक्टर्स होते हैं जो बहुत सिर्फ और सिर्फ मूवीज के बारे में बातें करते हैं, बट श्रुति हसन ने बताया कि वो एक ऐसे एक्टर है जो कि बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बातें करते हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स के बारे में. और मतलब तब से दिल में था उनके, मतलब तो स्टार्टिंग से ही था. सही, बाकी इतना आगे बढ़ जाएंगे ये नहीं पता था ना. हाँ, तो उसने बताया तो सिर्फ गवर्नमेंट के बारे में बातें करते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में और उनके आसपास के जो लोग हैं उनके बारे में. तो ग्राउंडेड पर्सन जिसको बोलते हैं, डाउन टू अर्थ भी थे काफ़ी. तो बहुत ही कुछ अच्छा और बिल्कुल सही भी लग रहा है उनको. जब से हमने उनको जाना है तब से हम श्रुति की बात से और ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि वो सब सच हो रहा है. तो बस यही था, दोनों ने तारीफ ही करी है और उनकी. और आई डोंट थिंक कि श्रुति हसन के साथ इनकी थर्ड मूवी भी कोई है. आई थिंक 2 ही मूवी है ना. हाँ, शायद 2 ही है ना, 2 ही मूवीज है. और एक और है, कौन सी? वकील साहब. अच्छा हाँ, वकील साहब है. ओह सॉरी, मैं भूल गया. हमने उसके सीन पे भी रिएक्ट किया गाइस, अगर आपको देखना है. उसके सॉन्ग पे भी रिएक्शन दिया, इसके सीन पे भी रिएक्शन दिया है. सॉन्ग था ना वो कंटी पापा ऐसा करके सॉन्ग का नाम है. सो उस पर भी हमने रिएक्शन, पर वो लिरिकल सॉन्ग था उसमें. तो अगर आपको देखना है तो चैनल पे देख सकते हो. सो गाइज पहले जैसे कि श्रुति हसन बोल रहे थे कि वो कंफ्यूज थे तीनों इंडस्ट्री में, हिंदी तमिल तेलुगु की कौन सी इंडस्ट्री में ज़्यादा फोकस करें. तो उसके बाद ही इनकी ये वाली मूवी आई. उसके बाद से उनको थोड़ी क्लैरिटी हो गई कि उनको किस इंडस्ट्री में ज़्यादा काम करना है. बिकॉज आई थिंक इस मूवी के बाद ही उनको सबसे ज़्यादा रिकग्निशन मिली थी, ऐसा मैंने एक इंटरव्यू में भी सुना था. और जैसा कि उन्होंने बोला कि जो टाइड्स पलट गई, मतलब सब कुछ चेंज हो गया उनकी लाइफ में इस पर्टिकुलर मूवी के बाद, बिकॉज उनको रिकग्निशन ऐसी मिल गई थी. मतलब ये मूवी आई थिंक काफ़ी ज़्यादा फेमस, मतलब वो ब्लॉकबस्टर रही होगी, तभी जाके श्रुति हसन का जो कैरियर है वो आई थिंक बना ही था ऑलरेडी, लेकिन उसमें भी थोड़ा इन्हेंसमेंट हो गया है ना. तो उनके करियर में भी पवन कल्याण सर का आई थिंक बहुत बड़ा हाथ है. बिकॉज उनके साथ 2 ब्लॉकबस्टर मूवीज आ चुकी है श्रुति हसन की. फर्स्ट इज़ सरदार गब्बर सिंह एंड सेकेंड इज़ काटमारायण नोटू. और काजल अग्रवाल की अगर मैं बात करूं तो उनके साथ भी एक ब्लॉकबस्टर मूवी आई है. कौन सी थी? ब्लॉकबस्टर हो या नहीं हो ये नहीं पता, बाकी गब्बर सिंह, सरदार गब्बर सिंह. हाँ सॉरी, सरदार गब्बर सिंह. थोड़ा बहुत सेम नाम है डब्ड वाले. तो वो ब्लॉकबस्टर नहीं थी क्या? हाँ, मतलब ऐसी थी, बाकी अच्छी, मतलब मुझे अच्छी लगी. मुझे भी अच्छी लगी. किसी को जज नहीं कर रही मूवी को, मुझे बहुत अच्छी लगी थी. वो मुझे भी अच्छी लगी थी. मतलब उस मूवी पुलिस थे और वो रानी थी, मतलब वो क्या स्टोरी, एकदम ऐसा लग रहा था कि कोई फेरी टेल चल रही. बहुत ही मतलब अच्छी लगी थी मुझे मूवी कि फिर एक हीरो आता है. मतलब आप अगर बोलो तो फिर हम उस मूवी पे भी रिएक्शन देंगे. प्लीज़ अगर चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन को अभी सारे लोग कमेंट करें ना. अंतरखेड़ी, हाँ उसका कमेंट कर. हाँ, बाकी पर्सनली मुझे काजल के साथ उनकी मूवी अच्छी लगी थी. अंतरखेड़ी में वो एक्ट्रेस है ना, समंथा है, और एक और एक्ट्रेस है अपन ने जो वो खतरनाक खिलाड़ी बनाई थी ना, जो उसकी एक ही उसमें नहीं वो बनाई थी ना. हाँ, उनकी मदर अपन ने प्रभास की एक मूवी बनाई थी, तो प्रभास की जो मदर उस मूवी में रहती है वो भी है. क्योंकि मैंने अंतरखेड़ी आप लोगों ने इतना बोला था ना, तो मैंने उसको सर्च किया था कि कौन सी मूवी है, तो मेरे को एक थंबनेल दिखा था, उसमें मैंने देखा था. तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड तो वैसे हो अंतरखेड़ी के लिए,
सो अगर कोई इंटरेस्टेड है सरदार गब्बर सिंह के लिए तो प्लीज वो भी कमेंट करें। और अंतरखेड़ी के लिए भी मैं पोल डालूंगा, तो उस बेसिस पे हम लोग अभी इसके बाद ही वो वाली मूवी भी शूट कर लेंगे। सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड बिकॉज आप लोगों ने बहुत बोला है कि वो मूवी बहुत अच्छी है। सो लेट्स सी कैसी होगी वो मूवी, क्योंकि वो पुरानी मूवी है थोड़ी, तो पुरानी मूवीज पवन कल्याण सर की बहुत अच्छी है, क्योंकि हमने बहुत सारी पुरानी मूवीज उनकी ऑलरेडी देखी है, तो हमको पता है कि स्टोरीज अच्छी है। सो लेट्स सी कैसी होगी मूवी। तो अभी के लिए तो ये वीडियो को रैप अप करते हैं और मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।